Good afternoon, dear friends. I am Krishan Rohila, and I would like to speak on a few topics that are of concern today to both of us, you and me. We are passing through the phase of COVID. We saw lockdown, now we are seeing unlockdown. So we are seeing patterns of going into a spin, coming out of a spin. Because of situations, many of us have gone through the toughest time of our lives. The toughest could be in personal settings, toughest time could be in the job settings, toughest time could be in relationships, and toughest times could be in understanding ourselves. What are we doing? Are we doing some work for fun? Are we enjoying the work? Are we getting the right creativity out of our own body? And there is the charisma. Am I making myself valuable to my employer? Am I making myself valuable to my owner? Am I making valuable to myself? Am I making valuable to my family? हर चीज़ को एक देखने का नज़रिया बना दिया हमने, हर चीज़ को तोलने का नज़रिया बना दिया. कभी अपने फीलिंग्स को तोलते हैं, कभी अपनी इमोशंस को तोलते हैं, कभी अपनी एजुकेशन को तोलते हैं, कभी अपने आप को तोलने लग गए. क्या मैं सही हूँ, क्या मैं गलत हूँ, क्या मैं जो करने चाह रहा हूँ वो लोगों को पसंद आएगा या नहीं आएगा. हर चीज़ में एक ऑप्शन आ चुका है हमारे पास. शायद उनको पसंद आए, शायद उनको ना पसंद आए. फिर एक स्टेज आता है लाइफ का जहाँ आप समझते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ क्या मुझे उसमें से खुशी मिल रही है. एम आई गेटिंग एनी प्लेजर आउट ऑफ डूइंग एनी एक्टिविटी इन माई लाइफ. देयर आर 24 hours. Are these 24 hours going to be of any value that I can give to the society or my family or my people? इस धुंध में आपने 3 महीने निकाल दिए. 90 days have passed where you have been sucked into such questions which may have answers, which may have meaningful answers, or which have led you a void in your life. क्या आपने उस कमी को कभी महसूस करने की कोशिश की है? क्या आपने कभी अपनी कमियों से उठने की कोशिश की है? कभी आपने किसी सहारे का लिया? कोई व्यक्ति, कोई विशेष व्यक्ति जो आपको उस क्षण याद आया हो जब आप एक मुसीबत में हो. मे बी ही इज़ योर फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, कज़न, एम्प्लॉयर, पास्ट एम्प्लॉयर, कोई भी जो आपको आपकी इस तकलीफ़ में जिस दौर से आप गुज़र रहे हैं, अगर वो साथ होता या अगर वो साथ होती तो शायद आप ज़िंदगी के कोई और मुकाम पे होते. इन्हीं कुछ सवालों से लेके चला है ये सिलसिला. ये कुछ सवाल मुझे झंझोड़ रहे थे. दिस questions were troubling me for some time. I thought, what is it? Let me take it out to the world. Maybe somebody valuable sitting there knows this. There are many coaches. There are life coaches, business coaches, personal coaches. There are trainers. There are yoga experts who make you feel that, okay, yes, if there is something missing, we will help you. I feel what is missing is already inside you. You are self-sufficient. Now, how can I be of help to that? And why am I talking on this subject? When you think that you are self-sufficient and you can be doing it, yes, and if you have money, there are trainers who take lakhs of rupees. Lakhs and lakhs of rupees per minute, per hour, per week. They have coaching sessions. It's their job. They have families to feed. Likewise, you have your family to feed. Now, where do I come in and why do I come in? I have an experience of last 19 years in national and international arenas. I've traveled to nearly about 30-35 countries across the globe. So, does it mean that anybody who travels he can talk on anything that could be valuable to you? Could make sense. That means anybody who has done job nationally and internationally
he could be of any value to you. Could be. Does it mean anybody who rose from the ranks of a sales executive to the general manager levels, the executive levels, decision making levels? Yes, could be. Where are you? Are you at a level where you are making an entry into a new job, into a new life? Are you getting married, into a new marriage? Are you breaking down from a marriage? You might be passing through different things of your life. How do you expect people to be homogeneously mixing, like people say? आप कुछ सोचो, पूरी दुनिया कायनात इकट्ठी हो जाती है उसको पूरा करने के लिए. क्या ये सच है? या सिर्फ ये शाहरुख खान तक लिमिटेड था, या कुछ लोगों तक लिमिटेड था जिनको शायद अपनी मोहब्बत मिली, या अपने कामयाबी मिली, या सक्सेस मिला? क्या वो आपके लिए साबित हो सकता है? शायद आपको किसी ट्रेनर की तलाश थी, शायद मुझे किसी स्टूडेंट की तलाश है. क्या आप वो स्टूडेंट हैं? क्या मैं वो आपका ट्रेनर बन सकता हूँ? ये तो वक्त ही बताएगा. दिस इज माई फर्स्ट सेशन गाइज, एंड आई फील life has taken me to such situations which could be happening in your life too. So this gives me an opportunity to speak to you, to bring out कि वो आपके अंदर का वो hidden talent, वो कीड़ा निकालिए. That कीड़ा needs to come out. If you are shy and you are not able to talk to people, बोलिए. If you want to become a person of media, बनिए. अगर आप में एडमिनिस्ट्रेटिव टैलेंट है तो दिखाइए. अगर आप में ऑर्गेनाइजिंग टैलेंट है तो निकालिए, प्रतिभा को बाहर निकालिए, लोगों में दिखाइए. अगर आप में एक अच्छा कुक बनने की क्षमता है तो वो प्रतिभा निकालिए. There is something holding you back. What is that something? हम सीखेंगे. There are many things, there are many layers. जैसे 13 प्रकार की लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, 13 प्रकार के सोच विचार होते हैं, वैसे ही आपकी क्वालिटीज़ आती है. There is a SWOT analysis we do. Strengths, weaknesses, opportunity, threats. मैं एक बैलेंस्ड स्कोर कार्ड बनाता हूँ. कंपनीज़ के बनते हैं. मैंने बहुत सारी कंपनीज देखी, इंडिविजुअली रन कंपनीज देखी हैं, मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखे हैं, मैंने शेयर होल्डर्स की रनिंग कंपनी देखी हैं, पर्सनली 1-to-1 इंटरेक्ट किया है डायरेक्टर्सों के साथ, वो लोगों के साथ जो उनके डिसीजन मेकर्स हैं. सीएस के साथ मैंने, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ मैंने बैठ के देखा है. मैंने डॉक्टर्स ऑपरेटेड बिजनेसेस देखे हैं. मैंने ऐसे बिजनेसेस देखे हैं जहां कनेक्टेड नहीं है लोग, वर्चुअली दे आर मिलियंस ऑफ माइल्स अपार्ट. उनकी सोच कैसे है? आपके साथ कौन है? आपकी सोच के साथ कौन है? आप किसको अपनी सोच के साथ जोड़ सकते हैं? आप किसको अपनी सोच के साथ लेके आगे बढ़ना चाह रहे हैं? आपके पास कोई प्रोडक्ट है विच इज जीनियस, शायद ऐसा प्रोडक्ट नहीं हो, या आपने कोई ऐसा जुगाड़ बना दिया हो, या आपने कोई ऐसा प्रोसेस बना दिया हो जो किसी दूसरे के काम को करने में आसानी लाए, पैसे बचाए. इज दैट समथिंग दैट यू आर वेटिंग फॉर? आपके पास एक आइडिया है लेकिन आपके पास पैसे नहीं. आप एक आइडिया का मंच ढूंढ रहे हैं. यू आर थिंकिंग ऑफ एन आइडिया वे यू कैन ब्रिंग दिस टू द पब्लिक, लेकिन आपको पता नहीं वो प्रोसेस कैसे है. कोई बंदा है जिसके पास प्रोसेस है लेकिन ही इज सर्चिंग फॉर अ प्रोडक्ट. किसी के पास बिजनेस आइडिया है, ही इज सर्चिंग फॉर अ मार्केट. किसी के पास मार्केट है बट उसके पास ये चीजें नहीं है. सो देयर हैज टू बी अ नेटवर्क. आप वो नेटवर्क में कैसे घुसे? हाउ आर यू गोइंग टू क्रिएट? आप पंजाब में बैठे हैं, डिमांड है उस प्रोडक्ट की केरला में, या आप इंडिया में बैठे हैं, उसकी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट. हाउ डू यू रीच दैट पर्टिकुलर क्लाइंट? फेसबुक है, गूगल है, सर्चेज हैं, सब कुछ है. फिर आप उस लाइफ के लेवल पे क्यों अटके हैं? आपकी लाइफ में वो ग्रोथ क्यों नहीं आ पाई? क्या रीजन है? आप सक्सेस पाके फिर फेल हो गए, क्या रीजन है? आपने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की, अपने पेरेंट्स के साथ झगड़ा होके अलग बैठ गए, आप अपने दोस्तों से झगड़ा होके अलग बैठ गए, अपने परिवार से झगड़ा होके अलग बैठ गए, डिवोर्स हो गया, बीमारी हो गई. क्या रीजन है?
इसका कोई कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? अगर आपको पता लग जाए कि हाँ यहाँ से मेरा डिबैकल शुरू है, मैं इसको रोक लूँ, दैट पॉइंट हु एनीबडी कैन टेल? वो नोकिया नहीं बता सके, वो अच्छे बड़ी कंपनी नहीं बता सकी, विजय माल्या नहीं बता सके। वो कहाँ से मेरा पतन शुरू हुआ मुझे पता नहीं लगा। मेरे पीठ पीछे क्या हो गया मुझे पता नहीं लगा। लोगों ने मुझे धोखा दे दिया, मुझे पता नहीं लगा। मैं ज़िंदगी में उठते जा रहा था, लोग जुड़ते जा रहे थे। मेरे पास जब पैसा नहीं था तब मैं कोई नहीं था। मैंने बहुत मेहनत की, मैंने बहुत मेहनत करके मैं ऊपर उठा। मेरे पास गाड़ी नहीं थी, मैंने मोटरसाइकिल से शुरू किया। मोटरसाइकिल से मैंने कार ली, कार से मैंने बड़ी कार ली, बड़ी कार से मैंने बहुत सारी कारें की। फिर एक दिन मेरा बिजनेस टूट गया। क्यों? कैसे हुआ? आपको पता क्यों नहीं लगा? जब आपको पता लगा, जब सीढ़ी की फर्स्ट स्टेप लिया, तब आपको पता था कि मेरे को ABCDEFGHIJ करना है। फिर आप नीचे कैसे गिर गए? मार्केट सिनेरियो थी। सर मैंने काम बहुत अच्छा शुरू किया, मेरा बहुत अच्छा धंधा चला, फिर मेरा मार्केट की वजह से डूब गया, मार्केट कंडीशंस की वजह से डूब गया, मेरा रिसेशन आ गया। क्या आपने अपनी कंपनी को रिसेशन प्रूफ करने का नहीं सोचा था? यहाँ मैं बहुत सारी चीज़ें ले रहा हूँ, यहाँ मैं इमोशंस के साथ जगल कर रहा हूँ, यहाँ मैं नॉलेज के साथ जगल कर रहा हूँ, यहाँ मैं कंपनीज के साथ जगल कर रहा हूँ, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट सेशन। सो ये थोड़ा जगलिंग रहेगा, बिकॉज एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। देन हाउ when you wanted to start, you started। सर मैंने न्यूज़पेपर फेंक के मैंने ज़िंदगी बनाई, मैंने अपने परिवार को पाला, 3 बहनों की शादी की। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। फिर आप आज नीचे कैसे गिर गए? आपने एक मकसद से स्टार्ट किया था, वो मकसद कहाँ ढीला पड़ गया? वो मकसद में पैसे क्यों नहीं आए? वो मकसद में लोग क्यों नहीं जुड़े? सर मैं हिंदू था, मैं इसलिए बर्बाद हो गया, या मैं मुसलमान था इसलिए बर्बाद हो गया। सर मैं बांग्लादेश जाके बर्बाद हो गया, सर मैं वहाँ जाके बर्बाद हो गया, वहाँ की ज़मीन मुझे फबी नहीं, वहाँ मैं गया, मैंने अपना बिजनेस स्प्रेड किया, वहाँ के लोग चोर थे, सर मेरे एम्प्लॉयज़ चोर थे, मैं ऐसा था, मैं बहुत मेहनत करता था। दीज आर सम ऑफ द सिनेरियोज। तकलीफ देते हैं, यस, बहुत तकलीफ होती है। आदमी मेहनत करता है, कोशिश करता है, ब्रेक डाउन करके एक एफर्ट लेता है। हम एग्जांपल्स देते हैं, स्पोर्ट्स स्टार्स के एग्जांपल देते हैं। बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन आगे बढ़ नहीं पा रहा। फिर एक स्पोर्ट्स स्टार आता है, सिंपली ही क्लाइम्स द रॉक, नंबर 1, बेस्ट प्लेयर अवार्ड, बेस्ट everything best about that player. And then one moment comes when that best player starts falling down the grades and doesn't get into the team. वही बेस्ट प्लेयर, वही स्ट्रगल, एक एंट्री लेवल स्ट्रगल, एक मिड लाइफ क्राइसिस का स्ट्रगल और एक एंड ऑफ द कैरियर का स्ट्रगल, सब जगह स्ट्रगल है। हमारे तो पंडित लोग बताते हैं जीवन स्ट्रगल है। आप जीवन में आए हो, स्ट्रगल करने के लिए आए हो। आप सत्य का मार्ग चूज करो, आप ये करो, आप ऐसा करने से आपके आज ग्रह ऐसे हो गए। आपके ग्रह तब अच्छे थे जब स्ट्रगल कर रहे थे, आप आके बैठ गए। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। यू हैव टू अंडरस्टैंड 2 things very important in life: your starting point and the point where you want to reach. Again I repeat, your starting point and the point that you have to reach, and that point should not be a fixed point. It has to keep changing. लोग मकसद बना के चलते हैं, मेरा 25 साल में मेरी कंपनी का विजन, मिशन, गोल। 2000 में जब हम 1995 में थे तो लोगों ने विजन बनाया था 2000 में मेरी कंपनी का ये हाल हो। फिर लोगों ने बोला नहीं 20 साल का विजन लेते हैं। फिर किसने 30 साल का विजन लिया, किसने 50 साल का विजन लिया। Those companies, some of them stuck to certain things, certain patterns, certain processes, and are still existing.
some companies merged, some companies were bought over, some companies died out. Why? कुछ सवाल मैं भी पूछूंगा आपसे, कुछ सवाल आपको पूछने का हक है मुझसे। ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों किया गया, और ऐसा कैसे हो गया जो एक अच्छे इरादे से कंपनी शुरू की थी, जो एक अच्छे नेक इरादे से कंपनी शुरू की थी, या कुछ एक संगठन शुरू किया था, कुछ एक पार्टनरशिप शुरू की थी, वो आज नहीं है, या कुछ सक्सेस पाके फेल हो गए। हम लोग सब एग्जाम्पल देने में हम लोग बहुत अच्छे हैं। हमने कुछ एग्जाम्पल बना लिए हैं नोकिया के, माइक्रोसॉफ्ट के, कुछ बना लिए हैं हमने इंडिविजुअल अमिताभ बच्चन जी के। लोगों के हमने एग्जाम्पल बनाने शुरू किए। हम खुद भी तो एग्जाम्पल हैं, हम अपने बच्चों के लिए एग्जाम्पल हैं। हम कैसे बताएं, हम कैसे समझाएं लोगों को हमारी ज़िंदगी में किसको दिलचस्पी है और क्यों। अगर मेरी ज़िंदगी में मेरे खुद के लेवल ऑफ स्ट्रगल्स चल रहे हैं तो मैं कैसे उससे उभरूं, मुझे कैसे लोगों का साथ चाहिए उससे उभरने के लिए, कौन मेरा साथ देगा। एंड देन एवरीबडी थिंक्स व्हाट इज इन इट फॉर मी। मैं क्यों आऊं, ये मूवमेंट बना है। एक कोविड में स्टार्ट हुआ था प्राइम मिनिस्टर केयर फंड्स, लोगों ने शुरू किया, फिर लोगों ने बोला ये तरीका नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं। लोग हज़ार तरीके से आते हैं, हज़ार तरीके से जुड़ते हैं, अपने अपने फ़ायदे के लिए जुड़ते हैं, अपने अपने फ़ायदे से निकल जाते हैं। एक बंदा जो एम्प्लॉय है, वर्कर है, लेबरर है, डेली वेजर है, वो गुजरात से चल के उड़ीसा जाना चाहता है। वो गुजरात में 25 साल बिताए उसने, गुजरात के लोगों से उसे बातचीत करी, महाराष्ट्र के लोगों में अगर सपोज करो काम कर रहा है, तो दीज गाइज हैव वर्कड देयर फॉर 25 ईयर्स। आज उसको अपने गांव की याद आ गई। कोविड में ही वॉन्ट्स टू वॉक बिकॉज ही डिड नॉट गेट फूड देयर। सो वी डू नॉट नो व्हाट फ्यूचर होल्ड्स। उसके बारे में हंसना बड़ा आसान है, अरे क्या लेबरर है, मूवमेंट कर रहा है, फैक्ट्रीज खुल जाएंगी फिर वापस मूवमेंट करेगा, उसकी रोटी उसे कहाँ ले जाएगी, नोबडी नोज। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, आपका दाना कहाँ बना है आपको नहीं पता। दैट गाय हु हैज गॉन बैक टू उड़ीसा और वेस्ट बंगाल और बिहार और यूपी, अगेन ही विल गो आउट बिकॉज हिज कंट्रोल इज नॉट इन हिज हैंड। जिस दिन वो कंट्रोल अपना अपने जिंदगी का अपने हाथ में ले लेगा, वो अपनी जन्नत वहीं बनाना शुरू करेगा। आई एम रिपीटिंग, द डे यू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, your life will be working according to you. आपको वहाँ से लेके वहाँ तक 3000 किलोमीटर 5000 किलोमीटर दूर जाना नहीं पड़ेगा, जहाँ आप चल चल के आ रहे हैं, फटे पाँव, फटी चप्पलें, खाना नहीं, पीना नहीं, भूखे प्यासे। आपने ये सिचुएशंस बना ली अपने अराउंड। क्यों बनी ऐसी आपकी सिचुएशन? 25 साल तक आप उस दूसरे स्टेट में रहे, आपने कभी अपने घर की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया। आज अब 25 साल उस जगह को छोड़ के आप 4000 किलोमीटर रात दिन भरी गर्मी में चल के आप अपने घर वापस जाना चाहते हैं। आज आपको घर का प्यार नज़र आ गया क्योंकि आपके सामने सिचुएशन, सच्चाई खुल गई। वो आदमी भी, एम्प्लॉयर भी कितने दिन तक आपको संभालता। फिर देश में आया आत्मनिर्भरता का स्लोगन, आत्मनिर्भर बनिए। गुड, वेरी गुड, आत्मनिर्भर बनना है, पर क्या हमने वो इंग्रेडिएंट्स दिए हैं आत्मनिर्भर बनने के लिए? हमने अपने आप को इतना डिपेंडेंट बना लिया है चीज़ों के लिए, अपनी खुशियों के लिए हमने डिपेंडेंट बना लिया है। अरे मेरी खुशी इस चीज़ की में डिपेंडेंट है, मेरी खुशी इस चीज़ पे डिपेंडेंट है, मेरी खुशी मेरे परिवार के लिए डिपेंडेंट है, मेरी खुशी मेरे पेरेंट्स के लिए डिपेंडेंट है, मेरी खुशी मेरे पति के लिए डिपेंडेंट है, मेरी खुशी मेरी पत्नी में डिपेंडेंट है, मेरी खुशी मेरे एम्प्लॉयज़ में डिपेंडेंट है, मेरी खुशी वो टारगेट अचीव करने में डिपेंडेंट है, मेरी खुशी वो उस कंपनी के साथ जुड़ने में मेरी खुशी डिपेंडेंट है। यू हैव मेड योर सेल्फ डिपेंडेंट ऑन मैनी थिंग्स एक्सटर्नल टू यू। आपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को इतनी तवज्जो दे दी अपनी लाइफ में, जहां आपने अंदर की
अस्तित्वता को ही खो दिया। अंदर का जो सोल थी आपकी, वो धीरे 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 उसका नरिशमेंट खत्म, उसका एक्सटर्नल नरिशमेंट हुआ। आपने अपने सोल को, अपने बॉडी को अच्छे कपड़े पहना दिए, आज गुची पहना दिया, आज बैग ले लिया, आज वो ले लिया, आज अच्छे जूते ले लिए। आपने यू हैव मेड योर सोल्स नरिशमेंट एक्सटर्नली। आपने अपने सोल को एनरिचमेंट दिया, अच्छा करा, अच्छे जूते ले लिए, अच्छे कपड़े ले लिए, अच्छा खाना खिला दिया, लेकिन आपने अपनी नरिशमेंट को डिपेंड बना दिया, अपनी उस चीज़ को आपने डिपेंड बना दिया इन चीज़ों के लिए। काश आप अपनी नरिशमेंट करते तो शायद ज़िंदगी के कुछ और क्वेश्चंस पूछ रहे होते आप इस स्टेज ऑफ लाइफ में। अब आता है नेक्स्ट पड़ाव आपकी लाइफ का। आपने लाइफ में, अगर आप एक टीनेजर हैं, आप 10-12 साल आपने पढ़ाई कर ली, आप आ रहे हैं, आप दुनिया देख रहे हैं, दुनिया बदल रही है, आपके फ्यूचर को लेके आप कंसर्न हो गए। आप अगर एक 15 साल से नौकरी कर रहे हैं, आप अभी आगे कंसर्न है कि भाई ऐसा स्टेज आएगा, कैसे क्या करूँगा। सो मेनी थिंग्स इन योर लाइफ कीप चेंजिंग, then how can you keep your things intact? How can you keep your ideas intact? What are you trying to get out of, and what are you trying to get into? These are some of our questions that we'll be answering. We'll be having more interactive sessions next time, where on the live go you can ask some questions, you can throw some questions, and we will try to answer them. This is my first session. I felt to get close to you, to understand where, what, why, when, and how. Let us take one question at a time, take a situation at a time, and refresh it. And फिर उस जिंदगी के मुकाम पे पहुंचे जहां आप होना चाहते हैं, आपको होना चाहिए था. And you deserve to be there. You deserve where you thought your mojo jojo is. अगर आपने सोचा कि मैं एक अच्छा स्पोर्ट्स स्टार बनूं, लेकिन परिवार की तकलीफ़ों ने आपको पाँव बांध दिए. कुछ लोग अच्छे स्पोर्ट्स स्टार बन के आज आम की रेडियों बेचे, कुछ अच्छे एक्टर्स आम की रेडियाँ बेच रहे हैं. क्या वो चाहते थे आम की रेडियाँ बेचना? उनका मुकाम था एक्टिंग करना, सुपरस्टार बनना, अच्छे अच्छे एक्टरों के साथ एक्टिंग करना, डायरेक्टर्स के साथ एक्टिंग करना. देन कहाँ गड़बड़ हुई? आप चाहते थे अपनी कंपनी को बहुत अच्छा रूप देने के लिए, आप चाहते थे मैं बिल गेट्स के साथ बैठना,